Okay, in 1999 on 27 अक्टूबर जब बहुत तेज बाढ़ आ गई थी, उस टाइम पे एक लड़के की कहानी है. दिस इज द स्टोरी ऑफ अ चाइल्ड ऑफ अ, हम चाइल्ड कह सकते हैं, एक पर्सन कह सकते हैं जिसने उसको बड़ी जो है ना ब्रेवरी के साथ में उसको क्या किया, उसको फेस किया एंड ही इमर्ज्ड एज अ लीडर. वो लीडर बन के उभरा. तो किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है. हम पढ़ते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर कि कोई परेशानी आ जाए तो व्हाट वी शुड डू. नाउ डेज कोरोना epidemic is spread all over the world and we have to behave in a proper way. तो ये भी एक तरीका है कि कुछ लोग इसके अंदर लोग किसी की मदद भी कर रहे हैं और मदद पहुंचा भी रहे हैं. ये भी एक वे है एक्चुअली. तो दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ पर्सन. एक लड़के की कहानी है जो कि अकेला अपने घर जाता है जहां वो फंसा हुआ था बाढ़ के अंदर, और उसके बाद सबकी वो मदद Sir, करता है. can you fit the page to screen? यस बेटे, पेज इज ऑन द स्क्रीन. कैन यू सी इट? No, sir, I'm not saying that, sir. Like full screen. That fourth option on the taskbar. Wait, Yes, sir. wait. Sir, there's a rotation button now, up adjacent to that one option. Wait. Now can you see this? Yes, sir. Yes, sir. Now okay. Now okay. Yes, sir. Clearly. Yes, sir. Now clear. Okay, that's fine. Yes, sir. See, weathering the storm in Arasama. कहाँ की कहानी है देखो. The cyclone that hit Orissa in October 1999 killed thousands of people and devastate होता है बर्बाद कर देना, devastated hundreds of villages. सैकड़ों गांव को बर्बाद कर दिया था. For 2 dreadful nights. 2 dreadful मतलब भयानक है ना. 2 dreadful nights. प्रशांत, लड़के का नाम क्या है? प्रशांत. A young man was marooned on the roof of a house. एक तरीके से मरून का मतलब होता है कहीं पे फंस जाना. He was stranded. अपने दोस्त के घर गया हुआ था. He had gone to his friend and there when the cyclone hit and he was stuck there with the family of his friend and they were on the rooftop पे वो खड़े थे और वहीं 2 दिन तक वहीं खड़ा रहा वो. On the third day he decided to go to his village. Did he find his family? सवाल यही है, क्या वो अपनी फैमिली को ढूंढ पाया? क्या उसको अपनी फैमिली मिली? क्या पॉइंट? No, sir. तो देखते हैं मिलेगी कि नहीं मिलेगी. में, sir. कौन रीड करेगा आप में से? Who will read this? Sir, may I? Sir, may I? हाँ, yes Manat, read it बेटे. Sir, from the starting of the paragraph now. Yeah. From the beginning. Yeah, यहाँ से start on 27th October. Okay, sir. On 27th October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant has gone back to block headquarters of Erisama, a small town in the coastal. Erisama is name of place. A small town in coastal Orissa. Coastal का मतलब होता है किनारे बचा हुआ है ना, बसा हुआ है ना. आगे बढ़ो बेटे. Some 18 kilometers from his village to spend the day with a friend. In the evening, a dark and menacing storm quickly gathered. Winds beat against the houses with a speed and fury that Prashant had never witnessed before. With a speed and fury. Wait. Fury means गुस्सा. यहाँ पे aggressiveness की बात हो रही है. ठीक है. जो रेन थी, winds जो थी वो beat against the houses का मतलब हवा बहुत तेज थी, आंधी जिसको हम कह सकते हैं. ठीक है. स्पीड एंड फ्यूरी that प्रशांत had never witnessed before. विटनेस करना होता है देखना. उसने आज तक इतनी तेज हवा कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी जितनी वो आज कर रहा था. Yes. Heavy and incessant rain filled the darkness. Ancient trees were. Wait. Now read it. Ancient trees were uprooted and crashed to the earth. Ancient trees uprooted जड़ से उखाड़ देना.
क्रैश, गिरा देना, क्रैश टू द अर्थ। एन एंशिएंट का मतलब होता है बहुत पुराने पुराने से पुराने पेड़ जिनकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, उनको भी उखाड़ दिया था। Screams rent the air as people and houses were swiftly washed away. The angry water poured into the friend's house neck deep. The building was of brick and mortar and was strong enough to survive the devastation of the wind's velocity of 350 km per hour. Wait. But the old terror. वेट, बिल्डिंग वॉज जो ब्रिक से बनी थी, मोटार से बनी थी, जिसको हम सीमेंट कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द डेवस्टेशन, मतलब विनाश, डेवस्टेशन मीन्स तबाही, विनाश, डिस्ट्रक्शन, केवल वही बच पा रही थी। एंग्री वाटर स्वर्ल्ड का मतलब होता है घूमता है ना, साइक्लोन में तो ऐसे घूमता है, पानी ऐसे आ रहा था, बिल्कुल चक्रवात था वो, साइक्लोन, चक्रवात को हम साइक्लोन कहते हैं, ठीक है। 350 किलोमीटर पर आवर। अब देखो हम गाड़ी में जाते हैं, वो गाड़ी 100 की स्पीड से भी चलती है तो बहुत तेज होती है। When we move in a car, it is 80-90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी गाड़ी चलती है। हाईवे पे हो सकता है हम 100 करें, लेकिन 350 देखो कितना तेज हो जाता है। 350 किलोमीटर की वेलोसिटी से, स्पीड से जो है आंधी या साइक्लोन था। यस। But the cold terror of the family grew with the crashing of trees that had both uprooted and fallen on their house, sometime in the middle of the night, damaging its roofs and walls. क्या हो गया? वेट, जो लंबे पेड़ थे, they got uprooted, जड़ से उखड़ गए और छतों पे गिर गए, घर की छतों के ऊपर, जिससे क्या हुआ, रूफ भी डैमेज हुई और वॉल्स भी डैमेज हुई। The great destruction. Sir, may I speak? Rot. Yes. The crazed destruction wrought by. इस rot का मतलब होता है caused by. Reason, caused. Cause. Rot means cause. ये जो crazed destruction था wrought by the cyclone. And the surge of the ocean. Surge of ocean. ऊंची लहरें. Continued for the next 36 hours. अगले 36 घंटे तक ऊंची लहरें उठी और साइक्लोन आ गया। Yes, next. Although wind speeds had reduced somewhat by the next morning, to escape the waters rising in the house, Prashant and his friend's family had taken refuge on the roof. Prashant will never forget this. Taken refuge का मतलब होता है शरण लेना। वो अपने घर की छत पे चढ़ गए थे, ठीक है, they took refuge there. फिर क्या हुआ? प्रशांत will never forget the shock he experienced at his first glimpse of the devastation brought by the super cyclone in the grey light of the early morning. इस rot का मतलब है caused, है ना, caused by the super cyclone। इसको super cyclone क्यों कहेंगे? क्योंकि बहुत तेज आंधी थी। super cyclone caused by the super cyclone in the grey light of the early morning. आगे पढ़ो। A raging deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see. Only fractured cement houses still stood in a few places. Bloated animal carcasses and human corpses floated in every direction. Wait. All around. Wait बेटा, सीन क्या हो गया है? जैसे ग्रे लाइट थी, जहां तक एक शीट, ब्राउन शीट दिखाई दे रही थी, ब्राउन शीट ऑफ वाटर, यानी दूर दूर तक केवल पानी था, ब्राउन शीट सी नजर आ रही थी, ठीक है, जहां तक आंखें देख सकती थी। ब्राउन कलर की शीट क्या नजर आ रही थी? बेटे पानी का रंग खराब, पानी खराब हो जाता है बेटे, बाढ़ का जब पानी आता है वो खराब हो जाता है, तो कलर उसका ब्राउनिश कलर था, ठीक है। अब क्या दिख रहा था? फ्रैक्चर्ड, टूटे हुए सीमेंट हाउसेस थे, कहीं कहीं खड़े दिख रहे थे। ब्लॉटेड, ब्लॉट होता है फूल जाना, एनिमल जब मर जाता है पानी में तो बॉडी फूल जाती है। ब्लॉटेड एनिमल्स, फुल डेड बॉडीज, कार्कसेस होती है एनिमल की, डेड बॉडी को कार्कस बोलते हैं, और ह्यूमन, इंसान के शव को, डेड बॉडी को कॉप्स बोलते हैं। तो इंसानों के शव
dead bodies of man and carcasses of animal, blotted animal मतलब फूले हुए थे वो, floated तैर रहे थे in every direction, चारों तरफ, all round, चारों तरफ. Even huge old trees had fallen, बड़े बड़े पुराने पेड़ भी गिरे. 2 coconut trees had fallen on the roof of their house. This was a blessing in disguise. Blessing in disguise का मतलब होता है, blessing का मतलब तो अच्छी चीज होती है, आशीर्वाद, और disguise का मतलब होता है Married now. छुपा हुआ. यस बेटे, एक सेकंड रुको. तो जब पेड़ गिरे तब तो वो बुरे थे, लेकिन बाद में वो ब्लेसिंग साबित हुए. क्यों? क्योंकि उन्हीं कोकोनट्स को खा के वो जिंदा रहे. Because the tender coconuts from the trees kept the trapped family. Trapped मतलब फंसी हुई family from starving. उनको बचाया भूखे मरने से. Starving होता है भूखा मरना. In the several days that followed. यानी कई दिनों तक वो छत के ऊपर ही रहे. They stayed on the roof and they ate coconut. Coconut खाए. कहाँ से मिले कोकोनट? क्योंकि उनके छत के ऊपर जो कोकोनट ट्री गिर गए थे, अप्रूट हो गए, उनसे उनको कोकोनट्स मिले और वही खा के वो जिंदा रहे. आई थिंक आपको ये पैराग्राफ क्लियर हो गया होगा. हाँ बेटे, आगे पढ़ो इसको अब. For the next 2 days, यस. For the next 2 days, Prashant sat huddled with his friend's family in the open on the rooftop. They froze in the cold and incessant rain. The rainwater washed away the Prashant's tears. The only thought that flashed through his mind was whether his family had survived the fury of the super cyclone. Was he to be whether his family had survived the fury of super cyclone. of the super? तो एक ही चिंता थी उसको कि मेरी फैमिली बची कि नहीं बची. यस. Was he to be bereaved once again? 2 days later. Wait, bereaved का मतलब होता है दुख में. क्या वो फिर से दुखी हो जाएगा, फिर से तकलीफों में गिर जाएगा? क्यों? क्योंकि उसकी मदर की डेथ कितने दिन पहले हुई थी? कितने मंथ्स पहले हुई थी मदर की डेथ? 7 मंथ पहले तो उसकी मदर की डेथ हुई थी. तो ही वॉज bereaved होता है दुख से गिर जाना. वो सोच रहा था क्या आज फिर से वो दुख से गिर जाएगा. अगेन विल ही बी bereaved बिकॉज इस साइक्लोन में उसके बाकी फैमिली मेंबर्स भी मर सकते हैं. सोच रहा था वो. यस. Where is it? 2 days later, which seemed to Prashant like 2 years, the rain ceased and the rainwater slowly began to recede. Cease means Prashant was stop करना. Rainwater slowly began to recede होता कम होना. जब बारिश का पानी जो है कम होना शुरू हो गया तब recede. Recede means बारिश का पानी कम हो जाता है. फिर Prashant was determined to seek out his family without further delay. yes, but the situation was still dangerous, and his friend's family pleaded with Prashant to stay back a little while longer. But Prashant knew he had to go. wait. He pleaded होता है विनती करना, रिक्वेस्ट करना. उनको कहा कि और रुक जाओ, a little while longer, थोड़ा सा और रुक जाओ. But Prashant knew he had to go. उसको जाना ही था, निकलना ही था. फिर क्या हुआ? He equipped himself with a long sturdy stick and then started on his 18-kilometer expedition back to his village through the swollen floodwaters. It was a journey he would never forget. He constantly had to use his stick to locate the road, to determine. Wait. He equipped with a long stick. एक लाठी ली उसने लंबी सी, क्योंकि पानी देखना होता है उसके अंदर पानी कितना गहरा है. ठीक है. He started his 18 किलोमीटर एक्सपेडिशन. 18 किलोमीटर जाना था. एक्सपेडिशन का मतलब होता है जर्नी. 18 किलोमीटर लंबी जर्नी जो है वो शुरू कर रहा था. उसने एक स्टिक ली अपने साथ में और चल पड़ा गांव की तरफ, फ्लड वाटर्स को काटते हुए. जर्नी ऐसी थी जिसे वो भूल नहीं सकता है. ठीक है. कॉन्स्टेंटली उसने उस स्टिक का यूज किया रोड को लोकेट करने के लिए, कहां तक रोड है. ठीक है. टू डिटरमाइन
where the water To determine where the Parvi. water was more shallow. shallow At मतलब places it was wait shallow का मतलब होता है जहाँ पानी कम हो, लाठी से ही पता चल रहा था उसको. Yes. At places, it was waist deep and progress was slow. At several points, he lost the road and had to swim. After some distance, he was relieved to find two friends of his uncle who were also returning to their village. They decided to move ahead together. As they waited, wait बेटे रुक जाया करो. पैराग्राफ 4 हो गया है. उसके पिताजी के फ्रेंड्स मिल गए उसको. टू फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल के दोस्त मिल गए. एंड नाउ दे डिसाइडेड टू गो टुगेदर. एक साथ चलने की उन्होंने जो ना एक तरीके से प्लानिंग करी. एंड दे वर रिलीव्ड, ही वाज रिलीव्ड आल्सो. रिलीव्ड का मतलब होता है हल्का सा रिलैक्स फील कर रहा था, राहत मिल गई थी उसको. फिर आगे चलते हैं. अब पढ़ो. as they waded through the waters, the scenes they witnessed grew more and more macabre. They had to push away many human bodies, men, women, children, and carcasses of dogs, goats, and cattle that the current swept against them as they moved ahead. In every village that they passed, they could barely see a house standing. Prashant now wept out loud and long. He was sure that his family could not survive this catastrophe. वेट. कैटास्ट्रॉफ का मतलब होता है विनाश, डिस्ट्रक्शन, डेवस्टेशन. ठीक है. वेड का मतलब होता है पानी में जब आप वॉक करते हो तो उसको वेड बोलते हैं. तो ही वेडेड थ्रू द वाटर्स. कार्कसेस का मतलब होता है डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स. एनिमल की डेड बॉडी को कार्कस बोलते हैं. डॉग्स हैं, गोट्स हैं, कैटल हैं. ठीक है. और वो रोने लगे. ही स्टार्टेड क्राइंग कि उसकी फैमिली जो है ना सर्वाइव नहीं कर पाएगी. सर्वाइव करना होता है बच जाना. उसको लगा कि इस फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड इज दिस कैटास्ट्रॉफ मतलब डिस्ट्रक्शन, डेवस्टेशन. इस विनाश से उसकी फैमिली बिल्कुल बची होगी. आगे चलो. इवेंचुअली अंत में Eventually, Prashant reached his village, Kalikuda. His heart went cold where their home once stood. There were only remnants of its roof. Some of their belongings were caught, mangled, and twisted in the branches of trees visible above the dark waters. Young Prashant decided to go to the Red Cross shelter to look for his family. वेट. क्या हुआ फिर? घर आ गया वो. What is so? जहां उसका घर था, he could not find anything. Remnants of its roof का मतलब होता है बचा कुचा जो मलबा होता है. Remnants चीजें बची हुई थी वही मिला बस. और फिर वो कहाँ गया? रेड क्रॉस शेल्टर. शेल्टर का मतलब होता है जहां पे लोगों को रखा जाता है. शेल्टर, शरण जहां पे मिले. रेड क्रॉस एक संस्था है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फ्लड में या किसी एपिडेमिक में सबकी मदद करती है. तो उसको लगा कि रेड क्रॉस के शेल्टर में जाऊं, देयर ही माइट गेट हिज फैमिली. उसको ऐसा लगा तो वहां से वहां चला गया वो रेड क्रॉस के शेल्टर में. और वहां पे क्या हुआ? अमंग द फर्स्ट पीपल ही सो. सर इस लाइन का मीनिंग क्या है? His heart went cold. कहाँ है सर इसे ये? Yes, sir. ये His heart went cold. क्या है ये? So means he was very worried, like my house is not here, and ये क्या है? व्हाट इज दिस? so heart. heart. हार्ट है ये, हर्ट नहीं है. हर्ट ये होता है. That's only what I mean. हर्ट ये होता है. HURT. हाँ. और हर्ट का मतलब होता है किसी को तकलीफ पहुंचाना. ये हार्ट है, दिल. इस हार्ट वेंट कोल्ड का मतलब होता है जैसे हमें कहते हैं ना उसका तो दिल बैठ गया, वो तो घबरा गया. उसने देखा घर तो है ही नहीं, बस कुछ मलबा पड़ा हुआ, रेमिनेंट्स हैं हाउस के छत के. तो डर गया वो, घबरा गया वो, बहुत ज्यादा जो एक तरीके से नर्वस हो गया वो. ठीक है. नेक्स्ट. Okay, sir. So yeah, among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother. Weak with hunger, she rushed to him, her hands outstretched, her eyes beaming. It was a miracle. They had long given up
long given him up for dead. वेट, कौन मिला सबसे पहले? मैटरनल ग्रैंड मदर, है ना, नानी मिली उसको। वीक थी, भूख से वीक हो गई थी वो, ठीक है। शी रेस्ट टू हिम, हर हैंड्स आउटरीच, आउटस्ट्रेच्ड, हर आईज ब्रीमिंग, आंखों में क्या थे? आंसू थे, आंसू चुके, रो रही थी वो। जादू लगा उसको कि कोई मिरेकल ही हो गया। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड, उनको लगा कि प्रशांत तो भाई बह गया पानी में, वो तो मर गया होगा, ठीक है। तो बड़ा उनको चमत्कार लगा कि ये तो कोई जादू हो गया है एक तरीके से। Sir, may I read next? हाँ, या you may read. Yes, sir. Quickly, word spread and his extended family gathered around him and hugged him tight in relief. Prashant anxiously scanned the motley, battered group. His brother and his sister, his uncles and aunts, they all seemed to be there. Wait, By the क्या next हुआ? morning, Wait, क्या हुआ? Quickly word spread and his extended family gathered around. उसकी पूरी फैमिली, दूर दूर के जो भी सब आ गए वहां पे। कौन कौन आ गया? प्रशांत एंजाइटी स्कैन द motley battered group, मतलब बुरी तरीके से जो टूटा हुआ ग्रुप था, पूरी फैमिली टूटी हुई थी। कौन कौन मिला? ब्रदर, सिस्टर, हिज अंकल, आंट्स, दे ऑल सीम टू बी, ऐसा लगा जैसे सब उसके पास ही हैं। He felt so that everybody was with him. Wait. ये देखो, यहां देख सकते हैं कैसे गया होगा वो। इस पिक्चर में आप देख पा रहे हो हाउ ही वेंट, कैसे उसने स्टिक का यूज किया। दिस वी हैव डन। ये देखो कैसे लोग भूखे थे और परेशान थे। But half part of this lesson is wait. Approx half part is done. Half of the part is done. In next class we will be doing that also. अगली क्लास में हम कंप्लीट करेंगे. This class is going to be over now. आपका काम ये है कि इसके जितने भी वर्ड्स हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स, सारे के सारे नोटबुक में लिखेंगे और कुछ क्वेश्चंस जो हैं टेक्स्ट के जो इससे रिलेटेड हैं वो भी आप करेंगे. आई विल सेंड यू सम क्वेश्चंस व्हिच यू हैव टू डू इन योर नोटबुक. Got my point? Yes, sir. After this, your class will be over. After this, your class will be over, and you will come.